So first things first, let me quickly introduce myself to you so that you guys know who I am. And from today, we'll be meeting more often. So we should know each other, right? So my name is Sugandha Arora. I am a life skills trainer, a mindset coach, and a leadership and spoken English mentor. Right? And why are we meeting today? हम आज क्यों मिल रहे हैं? The reason behind that is soft skills. We will learn a few skills of our life that are soft skills. इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. Before that, what we can do is, what we should actually do is, इससे पहले, as I said, first things first. I made an introduction about myself. I would also want you guys to introduce yourself to me. बट आपकी इंट्रोडक्शन से पहले आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ अबाउट दिस सेशन. ठीक है, ये आपके रेगुलर सेशन जैसा सेशन नहीं होगा जैसे आपके रेगुलर सेशन होते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट सेशन. ये बाकी सेशन से थोड़ा सा अलग है. हाउ आई टेल यू. वन, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू टॉक टू मी. ओके, दिस सेशन इज नॉट अ मोनोलॉग बट इट इज गोइंग टू बी अ डायलॉग. मैं अकेली नहीं बोलती रहूंगी और आप सुनते रहोगे इस सेशन में. इंस्टेड हम इस सेशन में क्या करेंगे, दैट वी विल टॉक टू ईच अदर. एक दूसरे से बात करेंगे, डायलॉग करेंगे, वी विल मेक एन इंटरेक्शन, बहुत एक्टिविटीज करेंगे, सो दैट वी अंडरस्टैंड एंड लर्न. तो जब हम पार्टिसिपेट करते हैं वी लर्न मोर. ओके, सो आई वॉन्ट यू ऑल, वी हैव गिवन यू एक्सेस टू अनम्यूट योर सेल्फ. तो आप अपने आप को अनम्यूट करके वेन एवर रिक्वायर्ड, इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, या फिर if you agree with me, if you don't agree with me, if you want to take part in any activity, simply unmute yourself and tell us that you want to talk to us. Okay, and that will be highly appreciated, by the way. Second thing that I want to tell you is, it is a request actually that I'm going to make to you. I want everyone to come on to your videos, please. It is very difficult to talk to black screens out here. All I can see is black screen, except I can just see Ajay here. Thank you very much, Ajay, for already doing it for me. बाकी लोग, आप लोग प्लीज अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो so that मैं आपको देख सकूं, and when we see each other we are better able to connect with each other, and एक बेटर इंटरेक्शन होगा जब हम एक दूसरे को देख पाएंगे. सो गाइज, इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज अपनी अपनी वीडियो पे आ जाओ so that the session can move forward in a better way. So see, these are just two things that I want you to know, to come on to your video, and हम बात करेंगे. हम इस सेशन में सिर्फ सुनेंगे नहीं, साथ साथ बोलेंगे भी, पार्टिसिपेट भी करेंगे. There are a lot of interesting things that we will learn in this session. बहुत कुछ interesting discuss करेंगे. Everyone, can you hear me? अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज अपनी अपनी वीडियो पे आ जाओ. कर क्या नहीं रहे इतनी देर से? इतनी देर क्यों लग रही है वीडियो पे आने पे? कंघी कर रहे हो या सूट बूट पहनने लग गए हो? कम ऑन, we don't require that. Come on to your videos, everyone. Surinder, Amit, Omni, Shyam Sundar, Sumit, and Arpit, and Ashish, Sakshi. आप लोग प्लीज अपनी अपनी वीडियो पे आ जाओ. वी वेस्टिंग टाइम दिस वे. ओके, मेकअप तो नहीं कर रहे हो? आर यू डूइंग योर मेकअप? ओके, दिस इज व्हाट आई थिंक, क्योंकि आई डोंट नो, इतना ज्यादा टाइम लगना तो नहीं चाहिए. ओके, anyway, we will move forward. Thank you both of you for switching on your videos. The rest of you also, thank you very much. Thank you. I can see you only. So thank you people who are here on the videos, who are not, please I'm waiting for you to come so that I can see you and have a discussion with all of you. Okay, so अब हम जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं वापसी. First things first, as I said, introduction. तो आप लोग मेरा नाम जानते हो. Anyway, it was reflecting on the screen. So you know who am I? मैं क्या करती हूँ आपको थोड़ा सा पता है. I want to know you as well. ठीक है, मैं आपको भी जानना चाहती हूँ because we will be meeting very often now. तो अगर मैं आप लोगों को जानूंगी in a better way, that will be much better. So एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन करेंगे, बट दिस इंट्रोडक्शन विल नॉट बी अ सिंपल इंट्रोडक्शन. इसको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ करेंगे. विल डू इट विद एन एक्टिविटी. ठीक है, वो एक्टिविटी समझा देती हूँ क्या करेंगे. एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, ध्यान से सुनना. You will introduce yourself by telling me your name. With your name, you have to tell me an adjective. That adjective should start from the first alphabet of your name.
and also with it tell me any 2 to 3 lines about yourself. I'll say it again. आप अपना नाम हमें बताएंगे, नाम के साथ साथ एक विशेषण लगाएंगे जो कि आपके नाम के पहले अल्फाबेट से, पहले अक्षर से शुरू होना चाहिए, ठीक है? और अपने बारे में एक दो लाइंस और जो भी कुछ आप बताना चाहते हो अपने बारे में सबको, दैट यू विल टेल एवरीवन. एक एग्जांपल भी दे देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स से इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ दिस वे, आई विल से, okay, hi everyone, I am Sensible Sugandha. So S for sensible, S for Sugandha. Sugandha is my name, sensible is an adjective. चाहे मैं हूँ चाहे नहीं हूँ, but you know, that's how it is. So you think what you are and you add an adjective with your name. Am I clear? समझ आ गया सबको? Keep giving me thumbs up ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है. आप you know you there, वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हो, so that's right. Okay, perfect. I can see the thumbs up. Please. Thank you very much. अभी तो हम कितने हैं यहाँ पे? We are 16 to 17 people. अगर हम एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन करेंगे तो it will take a lot of time. So हम करेंगे क्या एक्चुअली, यहाँ पे मेरे को सारे नेम पॉप अप हो रहे हैं यहाँ पे. So I will randomly choose 1 or 2 नेम. आप सब अपने अपने एडजेक्टिव सोच के रखो. जिसका भी नाम लूंगी, you know, you unmute yourself and start talking. ठीक है? Am I clear? जिसका भी नाम, randomly I'll choose a name and you can introduce yourself to everyone. Okay. So the first name that I'm going to take is Prem Prakash. Prem, please unmute yourself. प्रेम से अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Are you there? प्रेम, can you hear me? प्रेम, मैसेज पे नहीं लिखना है, अनम्यूट करके बोलना है. You have to unmute yourself and talk. Good afternoon, ma'am. Yes, hi, good afternoon, Prem. Ma'am, actually, my real name is Pushpanjali Mishra. Okay, okay, Pushpanjali. Yes, ma'am. So give me an introduction the way I told you. जैसे मैंने आपको बोली थी वैसे इंट्रोड्यूस करके बताओ. Okay, ma'am. Ma'am, firstly and most, I would like to introduce myself as very humble and diligent Pushpanjali. Oh, humble and diligent Pushpanjali. Two beautiful adjectives that you've chosen, Pushpanjali. Great. लेकिन एक करेक्शन है यहाँ पे. पुष्पांजलि, मैंने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने बोला था सेंसिबल सुगंधा, SS. तो अगर आपका कोई तो अगर आपका कोई एडजेक्टिव होना चाहिए तो वो एक्चुअली P से शुरू होना चाहिए, राइट? तो कुछ सोच सकते हो P से, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, कुछ भी. take your time, it's okay. Okay, Pushpanjali, how about this? Let me come back to you. आप सोच के रखो and then I'll come back to you again. Okay, okay, perfect. क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेम दिख रहा है तो अगर मैं प्रेम बोलूँ तो समझ जाना, that is cute. Okay, next, let's move on to the next person. Okay, let's talk to Mr. Amit Kumar. Amit, आपको यहाँ पे, Amit, are you there? Amit, can you hear me? Amit Kumar, can you hear me? We don't have all day long. Okay. Not working out. Ajay. Ajay, can you do it for me, please? Introduce yourself to me. Ajay, unmute yourself. Ajay has freezed for me. Ajay, you angry young man Ajay. Angry young man Ajay. Is that what you said? Ajay, आपका मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम. Right, it's not from my side. Okay, is it not from your side? Oh, is it from my end? I'm not sure then. Okay, ठीक है, मुझे शायद आपकी आवाज शायद कट कट के आ रही है. कोई बात नहीं अजय. So the adjective that you just said, angry young man, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे सुन के इस एडजेक्टिव को. आई होप मैं कुछ ऐसी गलती ना कर दूं कि आपको गुस्सा आ जाए. ओके, थैंक यू वेरी मच अजय.
Let's have one more person and then we move on. Omni, can we have you? Omni and Jivesh. Jivesh, both of you, okay? Jivesh and Omni, both of you. Let's do it with you and then we will move on. Hi, Omni. Can you hear me? Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I would like to introduce myself as I am optimistic Omni Pandey. Optimistic Omni. Lovely adjective. And this is something that this spirit is something that you should always have. Always be optimistic. Great. Amazing. Thank you very much, Omni. अपने बारे में और कुछ एक दो लाइन बताना चाहोगे आप? Anything? Where are you from? What do you do? Anything about yourself? Yeah, sure, ma'am. Ma'am, I am a student. I am pursuing BSc from IT College, Lucknow, and I'm just preparing for some of the government jobs that I can apply for after my graduation. And that's all. Perfect. Thank you very much. Okay. Jivesh, are you ready? Thank you, Omni. Yes, Jivesh, are you ready? Yes, introduce myself. Joyable Jivesh Chandra Baghel. What? Again, I'm so sorry. Joyable. Joyable. Okay. Joyable. Yes. Okay. Yeah. Jivesh Chandra Baghel. And Right. I would like something to be in sector of social working, right? Okay. Listening. Means that I mostly like to just participating in a social working and to motivate the persons whatever in the society is going on, evil things, bad things, and peoples are not well understand and not whatever the harmony is less among them. To basis on that topics we like to talk them and to whatever convince them, right? Okay. Amazing. Thank you so much, Jivesh. It takes a lot of courage कि सबके सामने बोलना और इतना detail में अपने आप को explain करना. Thank you very much, Jivesh. Thank you very much. I'll just make a small correction here. Joyable is, I think, joyful is the right word. Okay, joyful. Okay. Joyful, Jivesh. And that's again a good adjective. You should always be joyous. Okay, but I thinking it something is going or not, but we are going to live due to that current to correct it. How can we identify that this one is right or not? But I think it joyable, enjoyable, joyful. So I was also confused, but finally I have okay. Yeah. Exactly. And here we will have one learning from Jivesh. Jivesh से अब Yeah. you know what, हम कभी भी लोगों से मिलते हैं हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Something that I have learned from him is that whenever you take part in something, आप कभी भी किसी चीज में पार्ट लोगे, चाहे कुछ सही बोले चाहे गलत बोले, अगर गलत बोलेंगे तो सही हो जाएगा, सीखने को मिल जाएगा, और अगर सही होंगे तो we will get an appreciation from everyone. तारीफ तो मिलेगी, right? गलत होंगे तो करेक्ट हो जाएंगे, सही होंगे तो it's a win-win situation. So always take part, everyone. Thank you very much, Jivesh. Okay, now what I'm going to do is I'm going to tell you कि हम आज करने क्या वाले हैं. Introduction हो गया. I know you a little now. तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि soft skills है क्या actually. What we are going to do in soft skills. तो ये कुछ important soft skills है जो मैंने आपके लिए mention किए हैं यहाँ पे. I'm going to read them out. फिर आज इनमें से एक soft skill को touch करेंगे. इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है और हम आज के सेशन में और इसके आने वाले और सेशन में क्या करने वाले हैं, राइट? सो सॉफ्ट स्किल इज अबाउट लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स. हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है कि हम लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें, बातचीत कैसे करें, how to have that good aura in front of everyone कि हमारे से सब impress हो जाएं with our communication skills, right? Presentation skills, हमने अपने आप को present कैसे करना है, फिर चाहे हम किसी ऑफिस में हो, चाहे एक सोशल गैदरिंग में हो, चाहे अपने घर में हो, एक presentation skill बहुत important है, right? And that is what we will going to learn. Confidence building, कोई भी काम करने के लिए आत्मविश्वास
बहुत जरूरी है. आई होप यू ऑल अग्री विद मी ऑन दिस वन. अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा हम काफी चीजों को बहुत आसानी से कर जाते हैं, और अगर डरेंगे, नर्वसनेस होगी, शाइनेस होगी, अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आसान है पर हमें मुश्किल लगेंगी, राइट? एंड दैट इज व्हाई बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, जो कि अभी हमने थोड़ा सा उसके बारे में किया. यहाँ पे कम से कम 15 से 16 लोग हैं इस सेशन के अंदर. उनके सबके सामने हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, एक एडजेक्टिव बताया, सबको एड्रेस किया, अपने बारे में बताया. दैट इज व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. उसके लिए एक करेज चाहिए जो कि हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ, राइट? सोशल स्किल्स, कितनी बारी हम ऐसा होता है कि ऑकवर्ड हो जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी ऑकवर्ड हो जाते हैं कि इनसे क्या बात करें, बात ही करने को नहीं है, अब और क्या बोले, कल ही तो मिले थे, अब और आज क्या करेंगे मिलके, दोज थिंग्स. तो वो ऑकवर्डनेस नहीं हो, हम सोशली इतने कंफर्टेबल हो कि ईज के साथ सबसे सोशली मिक्सअप हो जाए. दीज आर स्किल्स दैट वी गोइंग टू लर्न. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लाइफ के हर एस्पेक्ट में वी गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल, इमोशनल, और however whichever problem, physical problems, emotional problems, सब आएंगी. उनको डील कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है with the right spirit, finding the right solution for the right problem is very important. इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? एज आई सेड, इमोशनली भी प्रॉब्लम होती है कई बार. शायद प्रॉब्लम है नहीं, बट हमें लग रहा है ओ गॉड हाउ एम आई गोइंग टू हैंडल इट, तो वो स्ट्रेस हो गया. तो मैनेजिंग वन सेल्फ इमोशनली इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई सेल्फ एस्टीम, अपने आप के बारे में कितनी अच्छी सोच हम रख सकते हैं उतनी रखनी चाहिए, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट? बिल्डिंग कॉन्फिडेंस is from the high self-esteem that we will learn about. Moving on, I'm just going to read on these things so that we don't miss what we're going to do today. Creativity, empathy. Oh, I'm so sorry. Okay. Creativity, empathy, leadership, decision-making ability, and self-motivation. तो ये कुछ चीजें हैं जो सॉफ्ट स्किल का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके एक सेशन में बात करेंगे. आज के सेशन में लेट्स टच अपॉन द फर्स्ट पॉइंट विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स. आज इसको टच करते हैं और देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्यों सीखना चाहिए, एंड व्हाट ऑल, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, बट इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. एज आई सेड दैट इट्स अ डायलॉग, हम दोनों आपस में बात करेंगे, आई मीन सारे. सो आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. आपको क्या लगता है, why is communication skill important? इनको सीखना जरूरी क्यों है या नहीं है? जो भी आपको लगता है, whatever is your view, what is communication skills? आपको क्या लगता है, पहले आप बताओ, and then I will start to what I feel. Okay, anybody who wants to say, please raise your hand. कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, बोलना चाहता है? यस यस, सुरजीत. Yes, Surjit? Ma'am, can you listen to me? Yes, I can hear you. Yeah. Ma'am, to express ourselves among other people, communication skill is very important for that. To express ourselves, communication skill is very important. I agree. इसके ऊपर अगर एक लाइन और बोलूं तो यू ऑल वुड एग्री कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऐसी चीज है जो लिविंग बींग्स में से, कितनी सारी चीजें हैं जो लिविंग बींग्स हैं, उसमें से सिर्फ ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल से ब्लेस किया है भगवान ने. we have the liberty to talk and express ourselves. लोगों से हम बात कर सकते हैं. Dogs cannot, cats cannot, plants cannot, trees cannot, right? So we are specially blessed with such skills. So why waste it? Let's use it. Express ourselves is very important. Thank you very much, Surjit. Thank you. Prem. So Pushpanjali, I think. Yes. Yes, ma'am. Yes, Pushpanjali. The main problem which I undergo is parental pressure. Okay. That's the main reason why I suffer sometimes. Sometimes I become very upset, discouraged. I feel that's only. So how to overcome that? Okay, Pushpanjali. Let's take up these things at a very easy way. Okay, so सबसे पहले आज हम communication के बारे में बात कर रहे हैं. This is a different topic altogether कि parental pressure से कैसे deal करेंगे. So Pushpanjali, keep this thing in your mind.
ठीक है, हम इसके बारे में और आगे आने वाले सेशन में भी बात करेंगे, बट आपने क्योंकि इस सेशन में ये पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन को वेस्ट नहीं जाने दूंगी. लेट मी जस्ट आंसर इन अ शॉर्ट डिटेल. क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसको कम्युनिकेशन से क्यों नहीं रिलेट करते. बात करके लाइफ में मुझे लगता है, दिस इज व्हाट आई फील, ये मेरी पर्सनल सोच भी हो सकती है, आप चाहे अग्री से करो या ना करो, ये मेरी पर्सनल सोच है कि ऐसी कोई अगर किसी के साथ कोई इशू है तो ऐसा इतना बड़ा इशू कुछ नहीं है जो बात करके हल नहीं हो सकता. इट इज जस्ट द मैटर ऑफ चूजिंग द राइट वर्ड. राइट, कम्युनिकेशन से सब हो सकता है. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो कि किससे कैसे कम्युनिकेट करना है. राइट, किसको कैसे, किससे कैसे डील करना है. अब इसी पे एक बात बताती हूँ. तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, आपको कब, किससे, कैसे, क्या और कहाँ बोलना है ये आना चाहिए. ये स्किल है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, यू मास्टर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. पेरेंट्स वुड नो, आपको पता होना चाहिए कि अब ये पेरेंट्स है तो इनसे कैसे बात करनी है, और इनसे अभी इस बारे में बात करनी है तो उसमें मेरा बात करने का लहजा क्या होना चाहिए. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल. लाइफ में किसी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप किसी स्ट्रेंजर के साथ हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, डॉटर सन हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, हुएवर इट इज, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर प्रॉब्लम है विद द रिलेशनशिप, कोई मुझे लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो बात करने से हल नहीं हो सकती. इट्स जस्ट दैट यू शुड नो हाउ टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. उसको एड्रेस कैसे करना है सिर्फ वो आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल. इस पे एक बात बोलूंगी, बहुत लोग हैं, आपने कभी शायद सुना भी होगा, जो बोलते हैं कि बातचीत तो ऐसी होनी चाहिए कि हम गंजे को भी कंगी बेच सके. यू नो, नाउ दैट पर्सन डजंट रिक्वायर अ फॉर्म, बट आपको बात करने का तरीका ऐसा आना चाहिए कि वो खरीद ले आपको. यू नो, ही शुड बी इम्प्रेस्ड विद यू. यू नो, ही शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स इन हिज माइंड. आपके बारे में उसकी ऐसी सोच होनी चाहिए कि ये बोल रहा है ना तो ठीक ही कह रहा होगा. राइट, क्योंकि ये बोल रहा है, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर Yes, यू ma'am. अंडरस्टैंडिंग पुष्पांजलि? ओके, थैंक यू Yes, वेरी ma'am. मच. थैंक यू Ma'am, वेरी and one मच. more इसके बाद, question. हाँ जी. Actually, I have no problem in public speaking, but sometimes Okay. there is a type of hesitation which I face. Right, right, right. So, Okay, I'm going to answer that. Yes, yes, पुष्पांजलि, thank you very much. मुझे लगता है ये हेजिटेशन, आज ये सेशन क्यों कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग, हम एग्जाम देते हैं, 10th के, 12th के, बोर्ड है, ग्रेजुएशन का पेपर है, वी टेक इट वेरी सीरियसली. मैंने ये नहीं बोला कि इसको सीरियसली नहीं लेना, लेना है सीरियसली, बट इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, ये जो चीजें हम सीख रहे हैं ना, ऑल दिस, ये हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है. दिस इज अ स्किल जो आपने आज सीख लिया तो आपसे कोई नहीं ले सकता, एंड यू हैव मास्टर्ड दैट स्किल, और इससे आप कितनी चीजों को सॉल्व कर सकते हो. सो इफ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, सबसे पहला रूल ही यही है कि अपनी हेजिटेशन को मिटाना है, झिझक को मिटाना है. यू टू ब्रेक दैट आइस दैट इज देयर इन यू. और पुष्पांजलि, इफ आई स्पेसिफिकली मेंशन अबाउट यू, मुझे तो नहीं लगा कि आप में झिझक है. यू नो व्हाई? बिकॉज अपनी प्रॉब्लम्स को 16 लोगों के सामने बोलने का हिम्मत सब में नहीं होती. यू हैव दैट. यू नो, इट इज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई एम गिविंग इट टू यू. बट हाँ, अब आपने बोला है तो वो होगी जरूर, तो उसी के बारे में बात करेंगे. द सोल्यूशन टू दैट इज प्रैक्टिस. हम इस सेशन में, इसलिए सेशन है कि हम इस सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रोल प्ले करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे. जब हमें यहाँ पे बात करने की आदत हो जाएगी ना, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ा टास्क है कि मैं क्यों जाके इससे बात करूं. व्हाई शुड आई से हाय और हेलो मे बी. अजय, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am. Actually, हाँ जी. पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि is it to speak in English? I can, but I don't want. अजय, आई एम सॉरी, प्लीज कैन यू रिपीट योरसेल्फ? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज रिपीट योरसेल्फ. Actually, is it necessary? Is it necessary to speak in English? Actually, I can, but I don't want to. नो, क्योंकि मुझे इट इज प्रेफर करना हिंदी एब्सोल्युटली ज्यादा नॉट पसंद है. नेसेसरी. बिल्कुल, बिल्कुल. सबसे पहले ठीक है मैं मैम. कम्युनिकेशन स्किल्स के, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप अजय. थैंक यू वेरी मच कि आपने एक क्वेश्चन पूछा है. इसका पहले मैं जवाब देती हूँ, फिर आप बोलिएगा जो आपने बोलना है. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है राइट वर्ड चूज करना, फिर वो चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में, या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो. बस सामने वाले को वो लैंग्वेज समझ आनी चाहिए. अब अगर मुझसे स्पेनिश में बात करने लग जाओगे तो यू नो आई जस्ट गो इन, आपकी सारी कम्युनिकेशन वेस्ट है.
इट इज जस्ट दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही बात करनी है, मास्टर करना है उस स्किल को। होता क्या है, एट टाइम्स हमारे दिमाग में वो प्रेशर होता है कि इंग्लिश में ही बात करनी है। तो क्या होता है, आई शो यू वन थिंग हियर, इसी से एक चीज दिखाती हूँ। दिस इज व्हाट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कभी कभार हमारे दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है कि मुझे ये बोलना है, नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग यहाँ पे कि मुझे ये बोलना है इसको, लेकिन वो जब वो सोच रहा है ना, तो वो सोच रहा है कि हिंदी में सोच रहा है वो, और अब उसके दिमाग में वो प्रेशर है कि मुझे उसको इंग्लिश में बोलना है, लेकिन मैं चाहता तो हिंदी में हूँ क्योंकि हिंदी में अच्छे से समझा पाऊंगा, लेकिन हमारे दिमाग में वो प्रेशर होता है कि बात इंग्लिश में ही करनी है। वाई? बिकॉज दैट विल गिव यू नो सम काइंड ऑफ गुड इंप्रेशन कि आप इंग्लिश में बात करते हो। तो क्या होता है, जो हम सोच रहे हैं सारा रेड है, राइट, लेकिन जब हम बोल रहे हैं रेड भी है, येलो भी है, ब्लू भी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब हम सोचते किसी लैंग्वेज में और बोलते किसी और लैंग्वेज में, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है, और सामने वाला वो चीज समझ ही नहीं पाएगा जो आप बोल रहे हो। आपने बोला लाल, उसने समझा पीला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज नॉट द वे दिस पिक्चर इज डिपिक्टेड। ये पिक्चर इसको डिपिक्ट नहीं करती है, बट मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस पिक्चर को। ठीक है, हैव यू गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन अजय? ठीक है, तो अपना पॉइंट, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके उसको सामने वाले को कन्वे करना, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू टॉक ओनली इन इंग्लिश। हाँ जी अजय, आप कुछ कहना चाहते हो? हमारा प्रश्न ये नहीं था कि हिंदी या इंग्लिश में बोलना, एक्चुअली बोलना इसलिए हिंदी में था क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है बट हिंदी में बोलना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को बोल दिया है। दूसरा चीज़ ये कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल, हिंदी में बिल्कुल, ज़्यादा ऑडिबल भी रहता है, हर एक को समझ में भी। राइट। दूसरा चीज़ कि जैसे कम्युनिकेशन की बात है, ठीक है, आई जस्ट वर्क इन 2 to 3 कंपनीज इन 8 years, लास्ट 8 years मैं 2 से 3 कंपनीज में काम कर चुका हूँ एज लाइक Quikr.com एंड IndiaMart.com। सो आई नो, एंड मेरे साथ कई सारे लोगों का इनकाउंटर हुआ ना। एज एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर मैं वर्क कर चुका हूँ, और मैं आई डिड बीटेक एंड ऑल्सो MBA एंड ऑल्सो आई एम परस्यूइंग LLB राइट नाउ। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या राइट। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि जैसे कम्युनिकेशन के बारे में आप कह रही हो, मैं नॉर्मल सा चीज़ बोलता हूँ कि जैसे मुझे खाना भी मांगना है ना, तो कम्युनिकेशन उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो बोलने का तरीका मालूम होना चाहिए कि किससे मेरे को क्या मांगना है। ऑब्वियसली बात है कि मैं सर्विसेज, तो हर तरीके का इनकाउंटर होता था। कई पर्सन ऐसे होते थे जिनको बेसिक से लेकर ऊपर तक समझाना पड़ता था, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात हेजिटेशन की, तो हेजिटेशन हमारा खुद का बनाया हुआ है। हम बोलना चाहेंगे तभी तो बोलेंगे, सामने वाले को क्या समझाना है वो हमारे ऊपर है। हम बोलते हैं तभी कम्युनिकेशन क्रिएट होता है, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच अजय। तो अजय ने यहाँ पे पुष्पांजलि के क्वेश्चन को भी थोड़ा बहुत आंसर किया और हमें अब वो क्या सोचते हैं कम्युनिकेशन के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच अजय। आई एम ग्लैड कि आपको हेजिटेशन नहीं है। आप कहते हो कि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए और आपको नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन I have been into this industry for a lot of years now, and I have been introducing to people, talking to people on a very large scale in front of a large audience, और लोगों को प्रॉब्लम इसमें होती है। आई डोंट नो, बट होती है। नॉट एवरीबडी इज सेम, राइट? दैट इज वाई दिस टॉपिक टुडे। और बहुत अच्छी बात ये बोली कि कई लोगों को कम्युनिकेशन के लिए हमें फ्रॉम स्क्रैच टू द एंड प्रोडक्ट हमें समझाना पड़ता है कि क्या है। सिर्फ ये है कि खाना भी मांगना है तो कम्युनिकेशन चाहिए, राइट? इस पे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको छोटा सा। खाना मांगते हो, आप ये भी बोल सकते हो प्लीज दे दो, चलना खाना दे, टू वेज कम्युनिकेशन। मांग दोनों में खाना रहे हो, आपके पापा कैसे है, तुम्हारा बाप कैसा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूछ आप उनके पापा की हेल्थ ही रहे हो या उनकी तबियत ही पूछ रहे हो, बट देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू से पापा एंड व्हेन यू से बाप। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल हियर। कभी भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हर सेशन में आज तक मुझे लोगों ने बोला है कि मैम कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें पता होना चाहिए हम अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। देयर इज वन पॉइंट हियर जिसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम छोटों से भी कैसे बात करें। अब छोटा कैसा भी छोटा हो सकता है, कैन बी इन एज, ओहदे में छोटा हो सकता है। तो इस पे एक एग्जाम्पल दे रही थी। हम सब मूवीज देखते हैं, डू वी ऑल वॉच बॉलीवुड मूवीज? सब देखते हैं, आई एम श्योर देखते होंगे। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, कीप गिविंग मी थम्स अप। ओके, यू आर राइटिंग।
प्लीज चैट पे मत लिखो, थम्स अप करके दिखाओ मुझे, क्योंकि वो स्क्रीन पे क्लियर दिखता है, चैट इज वेरी स्मॉल। परफेक्ट। तो एक मूवी का एग्जांपल दे रही हूँ, दिस इज द मूवी लगे रहो मुन्ना भाई, आई एम श्योर आपने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है। इसका एक एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, एक लड़की ना अपने रिश्ते के लिए लड़का देखने जाती है एक रेस्टोरेंट में, और वो संजय दत्त को कॉल करती है, वो रेडियो जॉकी होता है उस टाइम पे, और वो पूछती है कि मैं एक लड़का देखने जा रही हूँ, लेकिन मैं कैसे उसको जज करूं कि वो एक्चुअली में अच्छा है या नहीं। वो तो पहली मीटिंग में अच्छा ही बिहेव करेगा, लेकिन इंसान अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो संजय दत्त आगे से जवाब देता है कि पहले तो वो चुप रह के सोचता है 1 मिनट, वो पूरी मूवी का जो कंसेप्ट है गांधी जी बताते हैं व्हाटएवर। तो एंड ही टेल्स दैट गर्ल कि आपने सिर्फ ये देखना है कि वो अपने छोटों से बात कैसे करता है, सी हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज। तो वो बोलता है कि आप देखना कि वो वेटर को कैसे बुलाता है या उससे कैसे बात करता है। तो शी सेज ओके, शी हैंग्स द फोन अप, शी वेट्स एट द रेस्टोरेंट फॉर द गाय टू एंटर, और वो आता है, द बॉय कम्स इन, और वो जैसे ही आता है ना, वो लड़की यहाँ बैठी होती है, उसके सामने ऐसे हाथ ऐसे चौड़े करके बैठ जाता है, और नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू ऑर्डर समथिंग। तो वो वेटर को ऐसे ढूंढ रहा होता है, एंड दैट गर्ल इज क्रॉसिंग हर फिंगर्स की ओ गॉड पता नहीं कैसा होगा। और जैसे ही वो वेटर को बुलाता है, वो बोलता है अबे ओ, लाइक दैट। एंड दैट गर्ल दैट वेरी मोमेंट वो वहां से खड़ी होती है और निकल लेती है, एंड संजय दत्त को कॉल करती है, थैंक यू बोलती है, और बोलती है अगर इस चिच के साथ पूरी उम्र रहना पड़ता तो मैं तो मर ही जाती। दिस इज द एग्जैक्ट लाइन दैट शी सेज। तो एक कम्युनिकेशन के चक्कर में, जो कि उसने रियलाइज भी नहीं किया होगा दैट दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट ही इज डूइंग, वेटर ही तो है, करके बुला सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, वो ये सोच रहा होगा, बट इस चक्कर में रिश्ता हाथ से निकल गया, राइट। तो दीज आर समथिंग आई एम आई वॉच मूवीज अलॉट, और मैं मूवीज में से ऐसी बहुत चीजें एक्सट्रैक्ट करती हूँ, सीखती हूँ, और इनको बहुत यूज करती हूँ अपने सेशन में। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मूवी का। दिस इज अ मूवी, आपको याद है मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि हमें कब, कहाँ, किससे, कैसे, क्या बात करनी चाहिए, क्यों बात करनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ मूवी माला माल वीकली, हिलेरियस मूवी, बहुत कॉमेडी मूवी है, बहुत कॉमेडी मूवी है। तो इसका एक सीन होता है वेर इन आई हैव लाफ्ड माई थ्रोट आउट ऑन दिस सीन। क्या होता है दैट ये लोग ना जनगणना करने जाते हैं। तो इसका अब हमें क्या है, इसमें मैं समझाना क्या चाह रही हूँ दैट यू नो व्हेन समबडी टेल्स यू कि ये बात करनी है, तो उसमें हमें भी पता होना चाहिए, हमारा दिमाग खुला होना चाहिए कि बोल तो दिया, बट आगे जाके बात कैसे करनी है वो पता होना चाहिए, राइट। तो वो कहता है जनगणना करनी है तो तू घर घर में जाइयो और पूछना कि शादी हो गई कि नहीं, और फिर पूछना कि बच्चे हैं कि नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा किस घर में कितने लोग हैं, और हम कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। ही सेज ओके, ही गोज टू द फर्स्ट हाउस, वो घंटी बजाता है, एंड देयर इज अ गर्ल दैट कम्स आउट ऑफ द हाउस एंड ही सेज जी हम जनगणना करने आए हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्स जी मैडम आपकी शादी हो गई। तो वो कहती है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। कहता है आपके बच्चे हैं? तो खींच के थप्पड़ पड़ता है उसको मुंह पे कि जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, यू नो। वो अपने गाल को सहलाता हुआ जाता है और बोलता है कि मुझे तो चांटा पड़ गया, लेकिन पूछा तो मैंने वही था जो तुमने बोला था। तो वो कहता है तुमने गलत पूछा, तो मैं पहले पूछना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं। कहता है ठीक है आपसे ऐसे पूछ लेंगे। वो फिर दूसरे घर में जाता है, घंटी बजाता है, फिर एक लड़की बाहर निकलती है, कहता है जनगणना करने आए हैं, और पूछता है कि मैडम आपके बच्चे हैं? तो वो बोलती है बच्चे हैं। तो बोलता है मैडम आपकी शादी हो गई? फिर उसको खींच के थप्पड़ पड़ता है कि अगर मेरे बच्चे हैं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी शादी हो गई, राइट। दिस वाज सच अ हिलेरियस सीन, सच अ हिलेरियस सीन, बट द लर्निंग आउट ऑफ दिस सीन, you know, can you relate the level of communication that I told you in these two examples? Communication का level समझ आया in both the situations, right? Thank you very much, I've got one thumbs up. Yeah, right. So this is how important communication is, this is how we need to know. And if also talking about this example, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन में एक चीज और बहुत जरूरी है। जब हम कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हैं ना, सुनते हैं, व्हेन वी हियर अबाउट दिस वर्ड, तो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन इज टॉकिंग, बोलना। बट बोलने के अलावा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, विच इज सुनना। राइट कम्युनिकेशन तब हो सकती है जब हम बोल तो रहे हैं और सामने वाला जब जो बोल रहा है उतना अच्छे से उसको सुन रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं उस बात को, स्टोर कर रहे हैं अपने दिमाग में, और उस हिसाब से आगे जवाब दे रहे हैं या उस हिसाब से आगे बात को बढ़ा रहे हैं, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आपको समझ आ रहा है? आर यू विद मी ऑन दिस वन? एवरीवन, एवरीवन, एम आई मेकिंग सेंस टू यू? या ऐसा लग रहा है कि ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं आपसे पूछती हूँ कुछ, ठीक है? यू गाइस टेल मी
बहुत बारी ऐसा होता है कि हम लोगों से पहली बार मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी झिझक हटाते हैं, तो कुछ हाय हेलो करके फिर आगे कोई बात चल पड़ती है। तो जब हम वो बात चल पड़ती है, वो बात क्या होनी चाहिए? कोई मुझे बता सकता है कि हमें लोगों से किस बारे में बात जनरली करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन बारे में कभी बात नहीं करनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोचने वाला, लेकिन हम कई बार इस पे गौर नहीं करते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी शुड टॉक अबाउट टू पीपल and what are the topics that we should never ever touch when we are meeting people? Anyone? Anurag. Yes, Anurag. जब भी हम किसी से, मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी? हाँ जी, बिल्कुल अनुराग, यस। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पूछना चाहिए कि उसका हालचाल कैसा है, और उसको जो पसंद है, जैसे कि हम उसको जानते हैं तो हमें उसके बारे में और उसको जो पसंद है उसके बारे में पूछना चाहिए। लेकिन कभी ऐसी चीजों को नहीं पूछना चाहिए जो उससे बुरी लग सकती हैं, जैसे कि उसकी इनकम वगैरह या फिर उसको लव वगैरह या कुछ भी ऐसा नहीं पूछना चाहिए हमें। है ना? ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद जैसे कि हम अगर किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तब पे भी हमें कैजुअली बात करनी चाहिए, जैसे कि अपन को खुद अंदाजा होता है उससे कि अपन कौन कौन सी बात उससे पूछ सकते हैं जिससे उसे बुरा ना लगे, और कौन कौन सी बातें जो बुरी लग सकती हैं। तो जैसे अगर अपन पूछ लेते हैं तो उनका एक्सप्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का लगने लगता है, तो अपन को वहीं पे बात खत्म कर देनी चाहिए और दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन अच्छी होती है और सामने वाला भी अपन लोगों से इम्प्रेस हो जाता है कि उसे पता चल जाता है कि ये सही बंदा है बात करने के लिए। Perfect, Thank you. Anurag. Thank you very much. Thank you, and I really appreciate the things that you've said. तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात ये है कि हमें लोगों से उनके बारे में बात करनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट पूछना चाहिए किस चीज में है। और जब हमें उनका इंटरेस्ट पता चल जाता है, अगर जैसे आपको मान लो पता है कि मुझे शॉपिंग पसंद है, राइट, लेट्स से, आपको पता चल गई ये बात, तो अगर आप उसी बारे में मुझसे बात करोगे ना, मुझे आपसे बात करने में बड़ा मजा आएगा। व्हाई? क्योंकि आप कोई ऐसी बात कर रहे हो जो मेरे इंटरेस्ट की है, जो मुझे पसंद है, या मुझे कुकिंग करना पसंद है, या कुछ भी खाना पीना पसंद है। आई एम अ फूडी पर्सन। तो हम जब सामने वाले के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो उनसे बोर नहीं होता, और द कन्वर्सेशन गेट्स लॉन्ग एंड हेल्दी। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अनुराग ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया, सैलरी और कोई भी ऐसी चीज जो उनको बुरी लग सकती है नहीं पूछनी चाहिए। तो नेगेटिव कमेंट्स या ऑफेंसिव जोक्स कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और दो तीन लोगों ने हैंड रेज किया था which went down eventually. कोई बता, anybody else who want to say something to me? Anyone जो बताना चाहेगा कि सेफ क्या होता है बात करना, और क्या चीज है जिसके बारे में बात कभी नहीं करनी चाहिए? कोई और? नो वन? नो वन? 3-4 लोगों ने हाथ उठाया था, क्या हो गया, भूल गए? ओके, सुरजीत, थैंक यू। हाँ जी, यस सुरजीत। मैम पहली बात तो ये कि मैम पहले हमारे जो है परिस्थिति के हिसाब से हम किसी से कैसे बात कर सकते हैं। नो सुरजीत, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। सुरजीत, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। प्लीज थोड़ा थोड़ा तेज बोलेंगे सुरजीत? मैम अभी आ रही है? हाँ, बट थोड़ा आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, बोलो। मैम पहली बात तो सिचुएशन के हिसाब से हम किसी से कोई भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को देख के जज नहीं कर सकते कि वो किस तरह की बातें पसंद करता है। और किसी को समझ आ रहा है व्हाट ही इज सेइंग? बिकॉज़ पता नहीं, या तो आवाज गूंज रही है। सुरजीत, आप अपने मुंह से थोड़ा माइक दूर रख के बात करो। अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बट बहुत ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है, आपकी आवाज गूंज रही है थोड़ी। हाँ जी, बोलिए। अब ठीक है? हेलो? बाद में ट्राई करता हूँ, मैं बाद में ट्राई करता नो, सुरजीत, try again in some time. Till then, Pushpanjali wants to say. हाँ जी, Pushpanjali. First thing that while conversing to someone is that we should have a proper tone, the way which the person likes, and the most important thing is that we should also understand others feeling. By for example, that if we are conversing with someone, and only if we are continually speaking, then the person feels so bored and embarrassed. So we should also give chance for other person to speak also. वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ
आप ही मत बोलते जाओ। अभी जैसे मैंने बोला था, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो, सुनना भी बहुत जरूरी है। तो सुनने के लिए किसी को वो मौका देना पड़ेगा कि आप वो बोलेंगे तो आप सुनोगे, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ, क्योंकि आपकी टोन ठीक रहेगी तो वो कंफर्टेबल फील करेंगे। और जितना आप बोलना चाहते हो उससे ज्यादा आपको सुनना चाहिए, राइट? उनसे ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो the listening will be, the communication will be much better. Thank you very much, Pushpanjali. Amazing point. Okay. Never ask about personal life. Somebody wrote it here. ठीक है, अग्रीड। कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए। अभी आप मिले ही हो, ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे, you know, when you get friends, when you become close to each other, maybe then you automatically will know a lot of things about their personal life, but शुरू में हमें उनकी पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सुरजीत, डोंट से सॉरी। आपने जो बोलना चाह रहे हो आप लिख दो, आप चैट पे लिख दो, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक देयर इज सम इशू, सो यू राइट ऑन द चैट, आई विल रीड इट स्पेशली। ओके, थैंक यू सो मच। और नाउ आई विल शो यू थिंग्स दैट आई हैव इन माय माइंड, जो कि हमें बोलनी चाहिए, बारे में बात करनी चाहिए, और कुछ चीजें जिनके बारे में बात कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, so these are safe topics, these are unsafe topics. पहले safe को touch करते हैं and then we'll come on to these unsafe topics. So first one is weather, right? मौसम। So we can always talk about weather. हम इकट्ठे खड़े हैं या फिर अलग अलग हैं। वेदर एक ऐसी चीज है, इकट्ठे खड़े हो तो अगर मेरे लिए बारिश है तो आपके लिए भी है, और अगर हम अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल यू फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आप बता सकते हो यूपी में तो बहुत ह्यूमिडिटी है, ऐसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी तो नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी बहुत है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं है, कोई ऑफेंसिव बात नहीं है। सो वी कैन टॉक अबाउट वेदर, वी कैन टॉक अबाउट आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। आर्ट एंड एंटरटेनमेंट बहुत लोगों की बहुत वो होती है, व्हाट डू यू से, इंटरेस्ट की चीजें जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई माइट लव डांसिंग, यू माइट लव सिंगिंग, somebody might love painting, acting, creativity, crafting, skating, swimming. So we can always talk about all these things that are interesting to us. इसमें कोई इशू नहीं है, right? There is no problem in that. Sports, family, food. स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्संस के बारे में बात कर सकते हैं। फैमिली थोड़ा सा आउटर लेवल पे बात करेंगे फैमिली के बारे में, अंदर घुस के नहीं। एज वी सेड दैट पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, आउटर लेवल पे फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं। फूड, वी ऑल आर फूडी, हम सबको खाना पसंद है, हम सबको पता है कि कौन सी जगह का क्या फेमस है, क्या स्पेशल है, मे बी। सो वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, राइट? वर्क, आप क्या काम करते हो? मुझे लगता है जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, सबसे पहली चीज होती है जो हम पूछते हैं, हाय कैसे हो और आप क्या करते हो, तो वर्क आ जाता है उसमें। ट्रैवल, हम सबको घूमना फिरना पसंद है, कौन कहाँ कितना गया है, कहाँ पे क्या एक्सप्लोर किया है, कहाँ पे क्या अच्छा है, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। मूवीज एंटरटेनमेंट में आ गया, एंड हॉबीज जैसे कि मैंने बोला था, डांसिंग, सिंगिंग अगेन। ये आते हैं कुछ खतरनाक चीजें जिनके बारे में हमें बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टेकिंग द फर्स्ट वन इज फाइनेंसेस, जैसे कि यहाँ पे बोला था कि हमें किसी की सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, और फाइनेंसेस के साथ ही एक चीज एड ऑन अपने आप हो जाती है, विच इज एज। हमें किसी की एज भी नहीं पूछनी चाहिए, एंड इफ आई थिंक स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि सैलरी बॉयज से और एज गर्ल्स से नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन दोनों चीजें दोनों लोगों से नहीं पूछनी चाहिए। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स, अगर आप किसी को बर्थडे विश करते हो ना, किसी लड़की को, दैट विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, और आप कितने साल के हो गए, इफ यू आस्क, यू विल गेट अ स्टैंडर्ड रिप्लाई, मैं 16 साल की हो गई, और किसी उम्र को बढ़ती ही नहीं है, राइट? तो व्हाई डू दे से दैट कि हमें नहीं बताना भाई कि हम कितने साल के हैं, तो नहीं बताना तो नहीं पूछेंगे, राइट? सो लेट्स नॉट आस्क एनीवन्स एज और सैलरी। पॉलिटिक्स, हे मेरे भगवान, ओ माय गॉड, दिस इज अ रिस्कीएस्ट टॉपिक। मुझे लगता है लोगों के सेंटिमेंट्स इतने अटैच होते हैं ना पॉलिटिक्स को लेके, जैसे कि उनके पता नहीं कोई रिश्तेदार खड़े हैं इलेक्शन में, आई डोंट नो व्हाई, बट किसी के सेंटिमेंट्स बहुत अटैच होते हैं, काफी लोगों के होते हैं। कोई मोदी सपोर्टर है तो कोई केजरीवाल, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, वट एवर इट इज, नेवर टच ऑन दैट। फ्रेंडशिप तो क्या ही होनी है, लड़ाई पहले हो जाएगी, राइट? हाउ डेयर यू, तूने मोदी के बारे में बोल दिया, और ममता बनर्जी वो तो भगवान जैसी है, और वट एवर, that is what people feel like. So let's not get into it. Religion, a big no, right? Everyone is
close to their own religion. Everyone practice and preach their own religion. So let's not comment about their religion. जाना ही क्यों, पूछना ही क्यों, जैसे भी हो इंसान है, right? Let's just talk to them. Simple. So let's not get into Hindu, Muslim, Sai or whatever. Let's not get into it. Right? And also when I talk about religion, there's one important point. हम कभी नहीं पूछते, लेकिन हमें बातों बातों में पता चल जाता है. For example, किसी ने बोला मेरी नमाज का टाइम हो गया, let's say, तो आपको पता चल जाता है मुस्लिम है तो नमाज मुस्लिम, you know, आपने बोला कुछ नहीं, बट आपके एक्सप्रेशन ने सब बोल दिया. किसी ने बोला कि मुझे मंदिर जाना है, तो मंदिर, हिंदू तो पागल होते हैं, तो मंदिर जाते हो, you know, you at times can end up giving expressions which are not right. Right? तो हमें अपने expressions का भी बड़ा ध्यान देना है, especially when it's about religion. So I'm sorry if anybody, I don't intend to hurt anybody's sentiments. This is an example that I'm going to give you. Okay? Gossip, जैसे कि अभी हमने बोला, negative comments we discussed कि कुछ negative किसी के बारे में, ना अपने ना उनके ना किसी और के बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन किसका रिश्तेदार है, right? So let's not get into it. Offensive jokes, अभी तो मिले हो, क्यों किसी को joke crack करना? Physical appearance, मोटा, टकला, काला, महंगा, whatever, let's not get into it, right? And self talk, जैसे कि अभी बताया, I, me and myself, don't talk about that. Talk about others, ठीक है? अपने बारे में कम बात बताएंगे, लेकिन अपने बारे में ब्रैग नहीं करेंगे, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो 30 मार खान लो. Okay? So you are what you are. You will talk about others, you will talk about experiences, but let's not get into such things. जब मैं रिलीजन बोल रही थी, मैंने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला था, उसके ऊपर एक एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दैट हैपेंड विद मी. बहुत क्लोजली रिलेटेड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. आई वाज इन देहरादून, okay, and I was just walking on the street, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, which name, the name of that hospital is कैलाश हॉस्पिटल. तो मैं नीचे से जा रही थी, आपने कभी देखा हो रात का टाइम होता है तो वो लाइट जला देते हैं ताकि दूर तक दिखे, होता है ना, कोई भी कुछ भी हो तो लाइट जल जाती है. तो हुआ क्या, that when I was on the road, I looked up at that hospital, और वो ऊपर लाइट जल रही थी उस हॉस्पिटल की. नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखना, और वो लाइट बाई चांस आधी खराब थी, आधी ठीक थी. तो जो कैद था कैलाश का, उसमें लाइट नहीं जल रही थी, लाश में लाइट जल रही थी. ओ माय गॉड. एंड दैट वाज अ हॉस्पिटल. सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल था, तो जो दिख रहा था नीचे से, जब मैंने ऊपर देखा तो लिखा रहा था लाश हॉस्पिटल. what kind of a hospital? So you know, so this is a non-verbal communication that takes up, right? So you know, so non-verbal communication plays a very very major role when we talk to people about, right? जो हम बोल रहे हैं उसको हम इससे दिखाते भी हैं. तो मैं बोल रही हूँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन वो नहीं बोल रहे, तो सामने वाले को समझ आ जाता है, झूठ मत बोलो, राइट? So take care of your non-verbal communication as well. Non-verbal पे भी जाएंगे, आज हम communication के बारे में बात करते हैं, just in detail about it. Okay, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, let's do one activity. ठीक है, जैसे कि पुष्पांजलि ने बोला था कि झिझक होती है, तो उसको मिटाने की क्या चीज है? प्रैक्टिस. टॉक टू पीपल. हम यहाँ पे बात करेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हमें लगेगा चलो इनसे तो हमेशा मिलना है, इन्हीं से बात करनी है, इन्हीं के सामने में सब कुछ बोल रहे हैं. तो जब हमें इन लोगों से बात करने की आदत पड़ जाएगी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रेम में, वी विल गेट यूज्ड टू दैट पैटर्न. हमें लगेगा ठीक है, बात ही तो करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी कर चुके होंगे, तो हमें बाहर जाके इतनी शायद हेजिटेशन नहीं होगी, विच कैन बी इन एनी लैंग्वेज अगेन. सो लेट्स डू अ रोल प्ले वेर इन आई गिव यू अ सेटिंग. मैं आपको एक सेटिंग दूंगी, एक एनवायरमेंट दूंगी, जिसमें कि आपने रह के एक दूसरे से एक बात करनी है. दैट्स इट. ओके, लेट मी टेक 2 नेम्स हियर. अच्छा, लेट मी नॉट टेक नेम्स. कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड. तो एक रोल प्ले है जिसमें आपको दो लोग आपको किसी से बात करनी है. दैट्स इट. और क्या सेटिंग होगी? ओके, 2 पीपल, अनुराग एंड पुष्पांजलि. लेट्स डू इट विद यू. फर्स्ट 2 हैंड्स दैट वर अप फॉर अनुराग एंड पुष्पांजलि. आप दोनों अपने आप को अनम्यूट कर लो. ओके, आपकी सेटिंग ये है, द एनवायरमेंट जो आपका होगा वो ये होगा कि आप एक फंक्शन में हो, ठीक है, आप दोनों के फ्रेंड का बर्थडे है या जो भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते. आप जिसके फंक्शन में आए हो उसको जानते हो, बट एक दूसरे को नहीं जानते. सो यू हैव टू ब्रेक द आइस. वो एक यू नो, एक मैं क्यों जाऊं पहले, मैं क्यों बात करूं वाला वो फैक्टर हटाना है एंड बात करनी है. सो मेक एन इंटरेक्शन अमंग्स्ट ईच अदर. आस्क ईच अदर्स नेम और देखते हैं आप क्या बात करते हो. आपको पता है सेफ टॉपिक्स क्या है, अनसेफ टॉपिक्स क्या है, कैसे हेलो बोलना है. लेट्स सी कि आप कैसे करते हो. लेट्स गिव इट टू यू. ओके, आर यू बोथ रेडी? Are you both ready?
Pushpanjali and Anurag, are you ready? Yes, ma'am. Perfect. Let's start. Perfect. Yes, ma'am. 1, 2. Okay. Let's not say 1, 2, 3. Let's say lights, camera, action. Start. Hi, Pushpanjali. Hello. How are you? I'm fine. What about you? I am also fine. What are you doing? Just carrying out my studies. And you? I think we are in a party. Yes. Then talk about party. Okay. What are So you how's the prefer? party? Are you liking it or not? I think I feel bored in this party. There is no people who I talking with. I saw you and you are also standing alone. So I think you are the right person to talk with. Okay, that's my pleasure. Thank you. Yeah. So what's up? Everything's Tell me fine. about yourself. About myself. Yeah. Okay, first you tell, then I'll tell. Okay. Let me tell you both something. Thank you very much, Anurag. Thank you so much, Pushpanjali. You both did very well. Let me just clap for you. Being the first role play, आपने बहुत अच्छा किया. Thank you very much. सबसे बड़ी जो achievement है वो ये है खुद से participate करना is an achievement. So when you actually raise hand for participation, that's one achievement, and when you actually do it, that's another one. And you've done it very well. कुछ सजेशंस जो मैं आपको दूंगी वो यहाँ पे ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल अनुराग, यू रिमेम्बर अनसेफ टॉपिक्स एंड नेगेटिव कमेंट्स. यू रिमेम्बर दिस वन. ये पार्टी बड़ी बोरिंग है, यू नो. लेट्स से कि ये पार्टी उसकी बेस्ट फ्रेंड की है और वो गुस्सा हो जाती, बोरिंग है, मैंने ऑर्गेनाइज करी है ये पार्टी मेरे दोस्त की, बोरिंग कहाँ से है, यू नो. सो नेगेटिव कमेंट्स फर्स्ट मीटिंग, लेट्स नॉट गेट इनटू इट. ठीक है अनुराग? या वन थिंग. सेकेंड, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बारे में कुछ बताओ. नहीं, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी, यू नो. तो बोल दो, एक आधी लाइन बोल दो और फिर आप उनसे काउंटर क्वेश्चन कर लो. अगर आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्या बोले तो बोल दो आजकल तो मैं फ्री हूँ, या फिर मैं आजकल अपने कोर्स की तैयारी कर रही हूँ, या अभी मेरा 12th क्लास खत्म हुआ है, वट एवर, राइट. तो एक लाइन बोल के फिर उनके ऊपर डाल दो बात, सो दैट अब आप बोलो मेरे को भी नहीं बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोलना है, राइट. तो उस ऑकवर्डनेस को मिटाने के लिए ऐसा नहीं करो कि जवाब ही नहीं दो. गिव एन आंसर, मे बी गिव अ शॉर्ट आंसर, और फिर बात यू नो पुट ऑन द अदर पर्सन और उनको काउंटर क्वेश्चन कर दो. मे बी डोंट फील बैड व्हेन आई गिव यू कमेंट्स, दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, राइट. हम ऐसे ही रोल प्ले करेंगे तो सीखेंगे. वी विल लर्न हाउ डिफिकल्ट इज इट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रोल प्ले में ये थी कि मैंने बोला था आप एक दूसरे को नहीं जानते, और आपने बोला हेलो पुष्पांजलि, शी इज आल्सो सेइंग हाय अनुराग, राइट. यू हैड टू आस्क ईच अदर्स नेम. आपने एक दूसरे से नाम पूछना था और मुझे ये देखना था कि आप नाम कैसे पूछते हो एक दूसरे से. सो लेट्स डू वन शॉर्ट रोल प्ले जिसमें आपने सिर्फ एक दूसरे से नाम पूछना है. कौन करेगा? सिर्फ नाम पूछना है, हाय और नाम. कैसे पूछेंगे? लेट्स सी. ओके, ओमनी विल डू इट एंड साक्षी. यस, Omni and Sakshi. Lights, camera, action. Start quickly. किसी को तो शुरू करना पड़ेगा, बोलो quickly. Able to hear me? Yes, Sakshi, I can hear you. अरे So let शुरू. हाँ जी. can you please introduce yourself? Yeah, Hello. sure. Hello. I saw you standing there. Let me start the conversation, please, if you don't mind, ma'am. Can I? Omni. Unclear था जो आपने बोला. Can you please repeat? Ma'am, 1 minute. Ma'am, can I start the conversation now? Yes, please. Yes. Okay, Hello. start it fresh. 1, 2, 3, go. Hello. I saw you standing there. What's your good name? Myself Sakshi. What about you? Nice name. Nice name. My name is Omni Pandey.
Okay, So what are you that's doing it. and what's your That's it. Okay, Sakshi and Omni, that's it. मैंने बोला था कि सिर्फ नाम तक पूछना है. Thank you very much. बहुत अच्छा किया. It was very good. One very good thing was nice name. ठीक है, छोटा सा कॉम्प्लीमेंट जिससे शायद किसी को खुशी मिल जाए. राइट, सो वेरी गुड एफर्ट. एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगी नाम पूछने के लिए कि जो ये भी गलत नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, बट वो थोड़ी सी बेटर है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, मैंने जब ये सेशन शुरू किया था अपना नाम पहले बताया था, फिर आप लोगों से आपका नाम पूछा था, एंड दैट इज द एग्जैक्ट, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है. सो व्हेन यू वॉक अप टू पीपल यू से हाय आई एम सुगंधा, बस आपने इतना बोलना है और अपना हाथ, इफ यू वांट टू शेक हैंड तो हाथ बढ़ाओगे तो वो अपने आप अपना नाम आपको बताएंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये थोड़ा पोलाइटर वे है. और आप बोल सकते हो हाय आई एम सुगंधा एंड यू आर, हाय मेरा नाम सुगंधा है, आपका नाम, यू नो, दैट वे. हमेशा अपना नाम अगर पहले बताएंगे तो वो थोड़ा पोलाइट लगता है, थोड़ा बेटर लगता है. Okay, on this note, thank you very much. हमने आज सिर्फ 2 रोल प्लेस किए. When we meet in the next session, I hope we meet very soon again. When we are meeting in the next session, we will start from the role plays और फिर communication के बारे में आगे और थोड़ी सी discussion करेंगे. Thank you very much, everyone. Before you go, I want to understand from you how you liked the session. आप लोगों को session कैसा लगा? If you learned something, if you understood something, if you did not like this or you did not understand anything, please tell me frankly. Okay? कोई कुछ बोलना चाहता है या आप इस बारे में टाइप भी कर सकते हो. यू कैन टाइप एंड टेल मी एंड देन वी कैन फिनिश द सेशन. ओके, कोविड है, हैंडशेक नहीं करेंगे. राइट, एनीवन आप कुछ कहना चाहते यस हो? मैम. हाँ हाँ मैम, जी. अब मुझे आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही सेशन और भी चलते रहें, जिससे कि क्या है कि हम लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो जाए और फिर इन फ्यूचर अगर कहीं भी हम लोग जाएं तो मतलब कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो उसमें. क्योंकि क्या है कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो कम्युनिकेशन में थोड़ा हेजिटेशन होता है उन्हें, वो सोचते हैं कि मैं क्या बात करूँ और कैसे बात करूँ, किससे बात करूँ, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये और भी चलती रहे सेशन. Right. Thank you very much, Anurag. Thank you very much. Anyone else? I like this session and would love to have more. Okay. Thank you very much. Thank you very much, everyone. It was lovely having you all here. Hope we have another session very soon. For now, we will end this session and we will meet again very soon. Thank you very much. And Bye one bye. more thing. And one more Yes. thing. You are a good tutor. आप हम Thank लोगों को you. बहुत अच्छे से सिखाया. Thank you very much. Thank you. I appreciate the compliment. और Thank you very much. आपके साथ रह के मुझे लगता है कि आपके साथ रह के हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी. मैं यही चाहती हूँ. That is what I want. That is the mission. So let's work for it together. Thank you very much. Thank you, Thank you, Anurag. ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye. See you. Bye bye.